हाँ, बैंक has approved overdraft of rupees 25,000. So write down non-economic transaction. Okay, no entry. Okay, non-economic transaction. અહીંયા કોઈ entry નહીં આવે. Okay, ખાલી overdraft approved થયું છે. Okay, we are not withdrawing overdraft. Okay, just it is approved by the bank. So here non-economic transaction. Okay, આ મેસેજ કોનો આવ્યો? આ મેસેજ કોને મોકલ્યો અત્યારે? અત્યારે આવ્યો કોઈનો? નામ તો નથી આવ્યું. બરાબર વાંચ્યું નહીં મેં. હા હા હા. સર હું જઉં? કોણ છે? પ્રથમ. સર હું જઉં? સર હું જઉં એટલે એ તો નવું છે ને એના માટે તો હજી આગળનું બધું બાકી છે. એટલે મેં એને કીધું છે ખાલી તું બેસી રહે, ખાલી જોજે અમે શું કરીએ છીએ. ઓકે, કારણ કે એને તો અત્યારે નવું છે એટલે ખબર ના પડે ને પછી. सो यहाँ 20 में आपको लिखना है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. उसके बाद 25 बैंक हैज क्रेडिट इंटरेस्ट 250 एंड बैंक and debited bank charges rupees 100. Okay, बैंक हैज क्रेडिट इंटरेस्ट रुपीज 250 था. यहाँ पे दो एंट्री होगी, अलग अलग एंट्री होगी. ओके, इंटरेस्ट की अलग होगी और चार्जेस की अलग होगी. तो उसमें लिखो 25 315 25 314 बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 250. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 250, बैंक अकाउंट डेबिट 250. अरे श्रुति, कैसी करोगे? क्यों देखोगे? क्यों ना क्यों नहीं? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू इंटरेस्ट अकाउंट 250. मैंने कॉल करना इंटरनेट ऊपर थी. मैम कैसे? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू इंटरेस्ट अकाउंट 250. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 250, बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट 250 being interest received, being interest received. एमा डेट सेम डेट 25/3/14 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100. सेम डेट 25/3/14 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100. Now next date, sorry, narration being bank charges paid, being bank charges paid. Being bank charges paid.
Next one. A check of rupees 5,000 issued for foreign visit of son of owner from business. Hello. हेलो. हाँ बोलो. एक्चुअली આ મારું લેક્ચર ત્યાં ચાલુ છે તો તું ફોન ઉપર કરો ને તમે. નથી લાગતું? હા 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 હા. કિરીટ ફુવા. કિરીટ ફુવા. ફોન આવ્યો એમનો. અચ્છા અચ્છા એવું છે. ઓકે ઓકે ઓકે. ના એમનો કિરીટ ફોન પાછો ફોન આવ્યો પાછળ. ઓકે ઓકે. હા હા હા. શું કરાવ? હા વાત કરાવું છું પણ એ મમ્મી એવું કે છે કે ઘરે આવે તું એમ. હા વાત કરાવું હા એમની. ઓકે ઓકે 2 મિનિટ હા. अरे वो अंसल ये कैंसिल कैसे करना ऑडियो? वहां पे कहाँ पे ऑडियो में जाना है? ओके मोर पे क्लियर उसके बाद. हाँ हेलो. हाँ आवाज आया अभी. ओके ओके. तेरा आज क्लियर आ रहा है अंसल. चलो अभी नेक्स्ट. ए चेक ऑफ रुपीज 5,000 इश्यूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस. ओके तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? एनीवन प्लीज ट्राई. यस. આગળ શું? नो 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 नो. बैंक बैंक यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट चेक दिया ना. वी आर गिविंग चेक. ओके सो एंट्री इज ड्रॉइंग. हाँ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके 5,000. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000. नरेशन. Narration being check given for personal use for foreign visit of son. For foreign visit of son. हाँ चलो कोई फटाफट अभी ट्रांजेक्शन ऑफ ड्राइंग का लिखो. हेडिंग दे दो ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स. सॉरी अरे सॉरी एंट्रीज ऑफ गुड्स. एंट्रीज ऑफ गुड्स लिख दो फटाफट. सब ओके पॉइंट नंबर 1. Purchase goods on cash. Purchase goods on cash. Entry is purchase account debit. Purchase account debit to cash account.
Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Narration. Being goods purchase on cash. Being goods purchase on cash. लख्यू तुम लोग को? Okay. Next one. When goods are purchased on credit. When goods are purchased on credit, entry is purchase account debit. Purchase account debit to Mr. X account. Purchase account debit to Mr. X account. Actually मैं लो हेडफोन नहीं नाख्यो डायरेक्ट ओपन છે એટલા માટે. Purchase account debit to Mr. X account. Being goods purchase. Being goods purchase on credit. Being goods purchase on credit. हाँ बोलो. अप्रूव करना और बेटा. Being goods purchase on credit. लख्यू. Okay. Next one. When goods are purchased. When goods are purchased, half the amount paid by check. Half the amount paid by check. Entry is purchase account debit. Purchase account debit to Mr. X account to bank account. Purchase account debit to Mr. X account to bank account. Being goods purchase. Being goods purchase and half the amount paid by check. Being goods purchase and half the amount paid by check. Next one. अभी देखो इसमें क्या था कि हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक था और हाफ द अमाउंट क्रेडिट था. ओके बराबर. अभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा आपने थोड़ा चेक दिया, थोड़ा कैश दिया और थोड़ा बाकी रखा. ओके तो अभी वो लिखो. अभी व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट. व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट कॉमा कैश एंड बैंक. कॉमा कैश एंड बैंक.
Entry is when goods are purchased on credit, comma, cash and bank. Entry is purchase account debit, to Mr. X account, purchase account debit to Mr. X account, to bank account, to cash account. Narration: being goods purchase, narration, being goods purchase on credit, comma, cash and bank. Next point, when goods are sold on cash. भाई सबने लिखा ना बराबर? Everyone? Ansal? Okay, Ansal? Vedant? Okay. प्रथम? हाँ. ओके ओके. प्रथम है ग्रुप में कि चला गया? ओके ओके ओके. 2 मिनट. हाँ. इसका मतलब क्या है? अरे अच्छा समझ में नहीं आया तूने क्या लिखा है वो. ओके चलो बाद में बात करते हैं. ओके. हाँ. सो व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, when goods sold on cash, entry is cash account debit to sales account, cash account debit to sales account. Narration: being goods sold on cash. Narration: being goods sold on cash. Being goods sold on cash. Next point now. When good, uh, yes, always, always compulsory. Next one now. When goods are sold on credit, when goods are sold on credit, entry is name of customer account debit, name of customer account debit to sales account, name of customer account debit to sales account. Narration: being goods sold
हाँ बोलो। ओके। यहाँ पे हाँ हाँ ओके ओके। So when goods sold on credit, entry is name of customer account debit, name of customer account debit to sales account. Okay. Narration being goods sold on credit. Narration being goods sold on credit. Narration being goods sold on credit. Next point now. When goods are sold, when goods are sold on credit and by check. When goods are sold on credit and by check, entry is entry is name of customer account debit, name of customer account debit, bank account debit, name of customer account debit, bank account debit to sales account, to sales account. Narration narration being goods sold, being goods sold on credit and by check, being goods sold on credit and on by check. Next one. When goods are sold, when goods are sold, when goods are sold on credit, comma cash and bank. Entry is entry is entry is name of customer account debit, name of customer account debit. हाँ बेटा, वीडियो में बंद रखा है बेटा। हाँ वीडियो मैंने बंद रखा है बेटा। Name of customer account debit, name of customer account debit, bank account debit, bank account debit, cash account debit to sales account, to sales account. ओके बेटा, तो खाली एंट्री છે ને બેટા, ખાલી એકવાર વાંચી જજો. ઓકે, આન્સર પાસે લઈ લેજો. ઓકે ઓકે ઓકે, બાય બેટા. being
being good sold, being good sold, being good sold on credit, comma, cash and bank. तो ये था, इसमें आपको जो गुड्स अकाउंट लिखा है मैंने, ओके, ये विदाउट ट्रेड डिस्काउंट और कैश अकाउंट था, ओके, बराबर। अभी आपकी जो गुड्स की एंट्री आएगी उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा और कैश डिस्काउंट भी आएगा, ओके। सो पहले आप ये समझ लो कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट, ओके। तो जब भी आप एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब सोल्ड करता है, ओके, तो वो ऑलवेज क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है। तो उसमें क्या होता है कि अप टू 10 लाख में कोई डिस्काउंट नहीं होता है, बट सपोज इफ ही परचेसिंग मोर देन 10 लाख, ओके, तो उसको उस पर 10% वो डिस्काउंट देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा परचेस करे। और जितना आप ज्यादा परचेस करोगे उतना आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, और जितना आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, आपने 20 लाख का गुड्स परचेस किया, उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपया होता है। सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही गुड्स अभी बेचा ही नहीं है, फिर भी आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। तो 20 लाख का आपने परचेस किया, उस पे आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या कहते हैं इसको, कि जब आप बल्क में परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है ट्रेड पे। ट्रेड यानी बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी होती नहीं है, बट जो अमाउंट है वो माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स में होती नहीं है, बट उसका जो अमाउंट है वो टोटल में से माइनस होता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल, हाँ एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। 20 लाख का आपने गुड्स परचेस किया, ओके, बराबर। परचेज गुड्स ऑफ ₹20 लाख एट 10% डिस्काउंट, ओके, ऑन कैश, ओके। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट 18 लाख, क्योंकि 20 लाख पे 10% 2 लाख होता है। 20 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 18 लाख होता है। सो एंट्री इज परचेस अकाउंट डेबिट 18 लाख टू कैश अकाउंट 18 लाख। Narration: being goods purchased at 10% discount on cash. Okay. Narration: being goods purchased, being goods purchased at 10% discount on cash. Okay. तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ आपका, ट्रेड डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट। तो आपने सपोज 20 लाख का गुड्स परचेस किया है, ओके। अभी आपको 18,000 पेमेंट देना है सामने वाले को, सॉरी 18 लाख पेमेंट आपको देना है, ओके। अभी 18 लाख जो है वो छोटी अमाउंट नहीं है, ओके। तो सामने वाला क्या करेगा, निकालने के लिए और आपको 5% कैश डिस्काउंट देगा। आपको 5% क्या देगा, आपको कैश डिस्काउंट देगा वो, ओके। सो अभी चलो 5 नहीं 10% दे रहा है आपको, आप 70 का चेक दे रहे हो, तो वो आपको वापिस 10% क्या दे रहा है, आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है। सो 18 लाख पे कितना होता है 10%, 1,80,000, ओके। तो अभी आपको पेमेंट कितना करना है, 20 में से 18 हुआ, 18 में से 180 काट दो, तो कितना बचा, 16,20,000, ओके। तो आपको 20 लाख का आपने गुड्स परचेस किया, आपको पेमेंट करना है 16,20,000, आपको 3,80,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओके। बिजनेस तो अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, ओके, बेचना स्टार्ट नहीं किया, बट आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3,80,000 का, ओके, बराबर। सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट डिस्काउंट मिला वो कौन सा मिला, ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड जो मिला दैट इज अ कैश डिस्काउंट, ओके, बराबर। सो दोनों जो डिस्काउंट है, ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है और अमाउंट भी माइनस होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, अमाउंट माइनस होता है बट उसकी एंट्री होती नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, परचेज गुड्स ऑफ ₹20 लाख एट 10% डिस्काउंट, ओके, ऑन कैश। तो एंट्री क्या होगी आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट 18 लाख
to cash account 18 lakh. Narration being goods purchase at 10% discount on cash. ये हो गई आपकी एंट्री. ओके, नाउ अभी इसमें आप ट्रेड डिस्काउंट काट दो और उसमें कैश डिस्काउंट भी काट दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे देखो. अभी परचेज अकाउंट डेबिट 18 lakh टू कैश अकाउंट 16,20,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,80,000. ओके, तो यहाँ पे आप कैश डिस्काउंट काट दो 10%. ओके, तो एंट्री क्या होगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट 18 lakh टू कैश अकाउंट 16,20,000 टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 1,80,000. ओके, सो कैश डिस्काउंट आपको मिला है, आपकी इनकम है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. ओके, और कैश डिस्काउंट किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा. नॉमिनल का रूल क्या है?